जी, आज आइल्ट्स रीडिंग के हवाले से आज हम सेशन करेंगे। ये हमारा 5वां सेशन है इंजीनियर मलिक शुजात शाह साहब के साथ। तो ये जो इंजीनियर मलिक शुजात अली खान साहब हैं, ये माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। ओए लेवल ट्यूटरिंग भी है इनकी, बिज़नेस में भी एमबीए भी किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं और आइल्ट्स एक्सपर्ट भी हैं और ये ट्रेनिंग भी देते हैं आइल्ट्स के हवाले से अगर आपने प्रिपरेशन करवानी है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं सेशन में। मलिक साहब, शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। आपका ये 5वें सेशन में साहब थैंक यू वेरी मच। आपने इस तरह बताया कि आज का सेशन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक रीडिंग पे आज हम आइल्ट्स रीडिंग पे हम सेशन करेंगे। तो अभी सर इसमें एक चीज बताता चलूं कि आइल्ट्स रीडिंग के अंदर अगर एक दो आज हम जो मेन ट्रिक्स के रीडिंग की टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन से होते हैं और किन कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें आंसर आपके सीक्वेंस में आ रहे होते हैं। तो व्हाट व्हेन आई से कि सीक्वेंस, व्हाट आई मीन बाय सीक्वेंस इज कि अगर पहले का आंसर आएगा तो दूसरे का आंसर आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले का आंसर आया नहीं और तीसरे का आंसर आ गया। सो अगर आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टोटल है हमारे पास 8। मेरा ख्याल है इसमें हम बाद में डिटेल में आगे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक यू टुवर्ड्स द बोर्ड। अगर हम बोर्ड पे चले जाएं, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल के क्वेश्चन कितने टाइप के क्वेश्चन है रीडिंग को, ताकि हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाए। Abhi sir, now I'm writing these are your type of question. These are your how many types of questions there are. ये type जो है हमारे पास, we are talking about reading. Number one which we are going to discuss, that is going to be your list of headings. ये आपने अक्सर गो थ्रू किया होगा राइट्स के रीडिंग के पेपर को, तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स लिखी होती हैं। अगर आपके पास लेट सपोज ABCD 4-5 पैराग्राफ है, इधर 4-5 हेडिंग्स होंगी, तो आपने बताना होगा कौन से पैराग्राफ की कौन सी हेडिंग है। दिस इज द क्वेश्चन व्हाट वी कॉल इट एज अ लिस्ट ऑफ हेडिंग। योर सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच पैराग्राफ contains the information. He will give you some sort of information and will ask you okay, which paragraph contain this information. Either this is paragraph A, B, C, D, or you have to write down that. So this is going to be which paragraph contains information. This is our second type of question. Okay. Now moving on to the third type of question. The third type of question is that is matching. Now in this question actually he said, okay, do the matching. You will write down some information and then the written paragraph A, B, C, D, you have to just match with that. That is matching. Number 4, moving on to number 4, that is going to be your true, false, and not given. I think it will be better if I write down number 4 over here. This is number 4. Number 4 question will be that is true, false, and not given. And let me clarify here that what is the difference between all these three. So what he's saying in the question, if exactly that thing is given in the question, that is true. What he's saying in the question exactly that is not given in the paragraph, that is false. And if there's something in between that is not given, let's suppose if he is saying there are 6 ducks, and if he's saying, and in the question he's asking there are 5 ducks, that means 6 and 5 that contract with each other, that is false. And if he's saying 6 and they're saying many ducks, and then is something going to be a not given, not exactly given. So if it is exactly what is given in the question, exactly same in the paragraph, that is mean true. If he, what is saying in the paragraph exactly opposite to that what is asking the question, that is false. And if it's something between true and false, that is going to be your not given. That is question number or type number 4. And if you talk about type number 5, that is answer question. He will be giving you some question and you have to answer that question. So answer question, that is going to be our type number 5. If you're moving on to type number 6, that is going to be given a diagram. He may be asking you with the help of diagram to label it or want to ask any question from the diagram. So if this thing is situated there or where it is situated, something like that from diagram. And our next is going to be multiple choice question. That is going to be MCQs. So multiple choice question, again, he will give you a question, there are multiple answers, you have to select from that. That is multiple choice. And our last type of this reading is that is going to be fill in the blanks. Simple as that. You write down the sentence, you leave some blank, and you have to fill that blank. So now if you see, there are 8 types of questions. If you can see,
There are 8 types of these questions. Number 1, list of heading. Number 2, which paragraph contain information. Number 3 is matching. These are the 3. One type, other are 4 is true, false, not given. Then 5 is answer question. 6 is diagram. 7 is multiple choice. And 8 is fill in the blanks. Now, the important thing, let me tell you, is the most important thing which people don't know. If you know this thing, your job will become very easier. That is these first 3 types. They are list of the heading, which paragraph contain information, and matching. These 3 questions, their answers will be always not in sequence. List of heading, it can't be in sequence. You write down 7-8 headings, 7-8 paragraph, A B C D is written, and you have to match the headings. So they can't be in sequence. Which paragraph and information there, A B C D F paragraph asks which information there, so it also will not be in sequence. You have to just match it down. And third is the matching. Again, it can't be in sequence. So these are the 3 questions which will never be in sequence. And let me take you toward the other 5 type of question. They will always be in sequence. When I say in sequence, it means you are saying true, false, not given. Is given you 5 questions. For the first question, you have to find out where the information is. It can't happen that second question information, or third question information can come before second, or fifth question information come before third. So you have to always go in the sequence. If you know this thing, your job will become very easier. In a sense that is giving you a paragraph and asking you find out true, false, not given. He give you the information. Let's suppose the first question in the second line of this paragraph. So you must be sure that once the answer of the first will come, then the answer of second and third and so on, the answer will come. It can't happen. You're finding the answer of first one, and in between you have just got the answer of sixth question or fifth question. So this is something very important. All these questions are either the answer question. First, the answer of the first question will come, then second, third, and so on. Talking about diagram, again, the first thing will come, then second, third. It will always be in sequence. So here I'm putting a tick. This means that question number, these types, now 4, 5, 6, 7, 8, these all types answer will be in sequence. And where I put in a cross of these 3 headings, this means these answers will never be in sequence. It can be in any sequence. So this is going to be the biggest hint. If you keep this thing in mind, I think the things will become pretty easier. So let me take you back now. So here we are. So these are actually the 8 types of questions. So whichever the paper of reading you can just pick up, you will find no 9th or 10th type. They always be lying in these 8 types. Now what happened in the paper, that you are finding the first, second, and you just keep 3 or 4 things in your mind. It's very difficult to find all the answers at the same time. So, but if you know this thing, that the answer of first will come, then we move on to second, then we move on to third, I think then the job will become very easy. So this is the biggest takeaway from today's session. These are the 8 types of question. These 3 will be not be in sequence. These other 5, they will be in sequence. And in sequence means answer will be following and coming in sequence. So that's the biggest takeaway for the reading question. Another thing is just do practice, and whenever you practice, just keep this formula in your mind, just in front of you. Otherwise, there's no shortcut to practice. But if this is the biggest, I think someone can give you the shortcut. Other thing is, whenever you're reading the paragraph, just read it thoroughly. And before reading the paragraph, just go through the questions. It is very, very important that first read the questions, then read the paragraph. So this is something very important. And the other thing, if you, this is going to be another thing very, very important. Once you know this is the question, then you don't have to just read it for once, but second time, instead of reading, just scan it. Just scan it and you know what the thing you are finding. If you know, then try to reach to that pinpoint. And if you know that everything is coming in sequence, answer of first is done. Now the answer of second will start from here, where the answer of first ends. This is the point from where the second answer is starting. So this is another trick, that always, first of all, read the first, before reading the comprehension passage, is always advisable to read first of all the questions. The question will be in your mind, then you will read that comprehension passage, things will become very easy. Then which questions are in sequence, which questions are not in sequence. If you know this thing, you will hunt your questions according to that. I think again your life will become very easy as far as the reading of the IELTS is concerned. And the third thing is, first of all, read
Second, if you, then there's shortage of time, then scan. You know particular thing I'm searching for, just try to reach pinpoint there. And I think the last and the final advice to all our listeners will be that there's no shortcut to practice. So do practice as much as you can by keeping these all techniques in your mind, and then apply these techniques during the practice. And I hope so, then the things will become pretty easy. अच्छा मलिक साहब, इसके अंदर एक टेक्निक, कोई पर्टिकुलर टेक्निक्स भी हैं कि हम हाउ टू डिड्यूस द मीनिंग्स ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स और फ्रेजेस, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो फैमिलियर ही नहीं है उससे, तो उसकी कोई ऐसी टेक्निक्स हैं या मतलब इसको हम टैकल कर सकते हैं किस तरीके से? जी साहब, उसका हल यही है कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, पहले मैंने बात की थी कि यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन यू विल रीड ना, तो आपको पता होगा यार मैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए देख रहा हूँ। और फिर अगर आप वो सीक्वेंस वाली बात भी जेहन में रख लेते हैं, फिर आप देखते हैं यार ये चीज का मतलब मुझे नहीं पता, बट मोस्ट लाइकली समथिंग लाइक दैट। बिकॉज अगर कोई चीज नहीं है तो इस सबकी कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर आप ये चीज देख के यही अंदाजा लगा सकते हैं। देन यू हैव टू गो ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड। वो फिर तभी हो सकता है हमने क्वेश्चन अच्छे तरीके पढ़ा और मुझे पता है कि यार पहली 2 लाइनों के अंदर ना फर्स्ट का आंसर है, अब मुझे नजर आ रहा है कि थर्ड का आंसर ना मुझे 5th लाइन में नजर आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड का आंसर इज आइदर इन 3rd और 4th लाइन। अगर मुझे वो चीज इन में 3rd और 4th में यार पता है कि 6th लाइन में थर्ड का सेकंड का आंसर नहीं होगा, थर्ड के बाद नहीं, और थर्ड से पहले ही होगा। इफ यू गॉट द आंसर ऑफ थर्ड, देन गो बैक टू दोस 2 लाइंस। अब आपको आंसर नहीं पता, तो आप पर्टिकुलर वर्ड का नहीं मतलब पता, तो फिर यू कैन यूज द हिट एंड ट्रायल मेथड ना, तो यू कैन सेंस कि अच्छा यार इसका ये आंसर बन रहा है। द फर्स्ट थिंग इज कि यू मस्ट नो द मीनिंग। सेकंड, अगर नहीं पता चल रहा एंड यू नो द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन इन दीज 2 लाइंस, क्योंकि अभी से मैं समझता हूँ ये हमारे अक्सर सुनने वालों को और अक्सर टेस्ट आइल्स देने वालों को ये नहीं पता होता कि कौन से क्वेश्चन सीक्वेंस में है। तो देखा जाए तो ये हमारी बड़ी एक के बाद टेक्निक के बाद ये निकाली गई है चीज कि यार ये 3 क्वेश्चन दैट मेक्स अ सेंस कि यार लिस्ट ऑफ हेडिंग तो सीक्वेंस में हो ही नहीं सकता, डजंट मेक एनी सेंस ना। अगर मैं आपको हेडिंग दे दूंगा, कहूंगा ये कौन से पैराग्राफ की हेडिंग है, तो हॉट्स काम जो फर्स्ट हेडिंग है वो ए की है, पैराग्राफ की है, सेकंड हेडिंग बी की है, तो वो तो सेंस ही नहीं बनती। देयर इज नो फन ऑफ आस्किंग क्वेश्चन अगर मैं सीक्वेंस में ही लिख दूं। देन व्हिच पैराग्राफ कंटेन दिस इंफॉर्मेशन दी होगी, तो पैराग्राफ तो भाई आपने ढूंढना है। अभी तो उसके लिए मैं ये कहूंगा जहां होता है ना क्वेश्चन व्हिच पैराग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन या लिस्ट ऑफ हेडिंग, तो मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में जाने से पहले ही पैराग्राफ जल्दी से खुद पढ़ूं पहले, और मैं अपनी तरफ से एक हेडिंग बना लूं उसकी, यार मेरी समझ मुताबिक ये हेडिंग आ रही है, सेकंड पैराग्राफ की ये हेडिंग बनती है, थर्ड की ये, 4, 5, 6, 7 जो भी 5, 6 पैराग्राफ होंगे मैंने हेडिंग बना ली उनकी। फिर सब उन हेडिंग बनाने के बाद इफ आई विल सी द ऑप्शंस, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, फिर आई विल ट्राई टू मैच, तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। अगर मैं अपनी हेडिंग बनाए बगैर ही इसे पैराग्राफ पढ़ के उन हेडिंग को देखूंगा, तो फिर मेरा ख्याल है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो इट विल बी बेटर अप्रोच कि आप जरा खुद एक अपनी हेडिंग बना लें और फिर उसके बाद आप उसको वहां से देखें। ठीक है, ये यस नो या नॉट अभी सर आई गॉट इट। अच्छा ना, और दूसरा इसमें नीचे इन्होंने बताया काइंडली डिस्कस, या जी जी बिल्कुल जी जी। अब मैं इसके बता दूं कि यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन ऑलवेज इन सीक्वेंस। दिस इज ऑलवेज इन सीक्वेंस। सो दिस इज द बिगेस्ट हिंट फॉर दिस क्वेश्चन इज, जब भी आपको यस नो नॉट गिवन है, इसमें थोड़ी बात में ऐड कर दूं, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, चलो यार इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो दैट इज यस, नहीं, वेयर वी हैव टू पुट फॉल्स एंड वेयर वी हैव टू पुट नॉट गिवन। अब फॉल्स मैंने किसको करना है, या नो किसको करना है, नॉट गिवन किसको करना है। तो भी मैं एक बात रिपीट कर दूं, what he is asking in the question, if exactly that is given in the passage, that is true or yes. And if what is asking in the question exactly opposite to that is given in the passage, yeah, what is given in the passage and what is asking in the question that is exactly opposite, then you have to go for no. And if it is something in between true and false, something in between yes and no, then you have to move on to not given. तो यस नो के दरमियान में अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट है, गो फॉर नो, एग्जैक्टली सेम है, गो फॉर यस, इन बिटवीन देन यू हैव टू गो फॉर नॉट गिवन ऑप्शन। तो ये अक्सर लोगों को कंफ्यूजन रहता है। अच्छा क्वेश्चन था, तो यू हैव टू टैकल दैट वे, आइदर यू गो फॉर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इन बिटवीन तो आपको अंदाजा हो जाएगा यार दैट इज नॉट गिवन। बट एग्जैक्टली ऑपोजिट एक चीज गिवन है और आप उसको नॉट गिवन कर देते हैं, या एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं है उसको फॉल्स कर देते हैं, तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम एंड यू विल बी पेनलाइज्ड। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस थिंग। और ये आप जब गो थ्रू करेंगे पैसेजेस को, शायद अभी सेशन में हमारे लिए पॉसिबल ना हो, आगे फ्यूचर सेशन में कंडक्ट करें तो हम मे बी विल रीडिंग द पैराग्राफ एंड गिविंग यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि भाई दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स एंड दिस इज नॉट गिवन। सो मे बी इन फ्यूचर हम रीडिंग के भी और सेशंस प्लान करें, तो उसके अंदर हम पैसेजेस पढ़ के और आपको एग्जांपल दे के करेंगे, तो आई थिंक देन दिस थिंग विल बी मोर क्लियर टू यू। ठीक हो गया। अच्छा मलिक साहब, इसमें एक चीज
आपने ये सारी डिटेल तो बता दी है। आखिर में एडवाइस कर दें, एक तो बीच में है ये, अगर आपने ऐड कर दिया है तो इसको जस्ट एक दफ़ा रिवाइज़ कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स जो हैं, जो आप समझते हैं कॉमन ये पिटफॉल्स हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को करते हैं, और उससे इसको किस तरह बचा जा सकता है। और फाइनल थॉट्स दे दें इस हवाले से कि आप अल्टीमेट एडवाइस क्या देते हैं जो टारगेट कर रहे हैं 7.5 प्लस बैंड आइल्ट्स रीडिंग में और ओवरऑल आइल्ट्स में। ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक ना अक्सर ना आप देखें ना, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज हम अब बाकी पेपर्स में भी कर रहे होते हैं, पीपल आर वेरी मच फेमिलियर, fill in the blanks, people are very much familiar, answer questions, people are very much familiar, but is this is something new, true false or not given, जिस तरह भी हमें लास्ट लिसनर ने भी क्वेश्चन भी पूछा था, तो नॉट गिवन दिस इज समथिंग विच इज समथिंग न्यू प्रॉब्लमेटिक, तो उसको मेरा ख्याल है हमने बात कर ली है। अगर आप उस चीज में रखते हुए शायद ये समझने में अभी सब शायद इतनी चीज वो इफेक्टिव ना लगे जितना आप इसको अप्लाई करेंगे तो जितनी इफेक्टिव है। तो मेरी एडवाइस ये कि सेशन लेने के बाद या जो हमने आपसे वो एक पूरा चार्ट डिस्कस किया था, जरूर आप इसको जब हमारे लिसनर जो बाद में हमारी वीडियो देखेंगे जरूर उसको पीछे करके उस ट्राई टू अंडरस्टैंड और फिर आप मैच करके देख लें, यू विल फाइंड कि देयर इज नो अदर क्वेश्चन इन द रीडिंग क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम दीज 8 टाइप्स। तो ये बड़ी एक मेहनत के बाद ये 8 बनाकर और एक फार्मूला बनाया कि भाई दीज 3 आर नॉट इन सीक्वेंस, दीज 5 आर इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में है तो गो विद द सीक्वेंस, फर्स्ट सेकंड का आंसर आएगा, थर्ड का डोंट कंफ्यूज के थर्ड का आंसर भाई मैं फिफ्थ का जेन में रख लूं, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा तो फिफ्थ, लेकिन अगर आपको नजर आ जाता है यार ये फिफ्थ का आंसर है तो देन डू रिमेंबर कि इन बिटवीन 3 एंड 5 देन दैट इज 4, आपको 4 नहीं मिल रहा और 5 मिल गया है तो इसका मतलब है आप बीच में से 4 का लिंक मिस कर रहे हैं, रू रीड अगेन एंड यू गेट द आंसर ऑफ 4। तो अगर आप ये टाइप्स की और उसकी टेक्निक्स को जेन में रख के करेंगे आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट शॉर्टकट। और दूसरी बात है भाई साहब आपको जो आइल्ट्स की 17 बुक्स हैं ट्राई टू गो, खास तौर पे जो लेटेस्ट बुक्स हैं मैं सजेस्ट करूंगा आप 11 ऑनवर्ड या उसको और मजीद एक्यूरेट ले लें तो 14 ऑनवर्ड, 14 15 16 17 आपके पास टाइम है तो डू गो टू 11। तो 11 ऑनवर्ड बुक्स आप उनको करें, उनके हर पैसेज को गो थ्रू करें, यू विल नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन रीडिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इन टाइप्स के अलावा। और आपका डेफिनेटली शुरू में टाइम लगेगा, आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा होगा, बट लेट मी अश्योर यू विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल प्रैक्टिस मोर। और आपको ये जब ये जो चीज मैंने आपको टाइप्स बताई है शायद इतनी आसानी से आप ये अभी तो आप शायद एक सफे पे लिख के सामने रख के जब अटेम्प्ट कर रहे हैं अच्छा यार ये सीक्वेंस में होंगे ये सीक्वेंस में नहीं होंगे देख सकते हैं, लेकिन फिर आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी उसके बाद आप क्वेश्चन देख के अंदाजा लगा लेंगे। इट इज नॉट समथिंग कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट कीप इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर इस तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़े टेस्ट के बाद फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा अच्छा यार ये सीक्वेंस में है ये सीक्वेंस में नहीं है। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू प्रैक्टिस। और लिस्ट ऑफ हेडिंग में वो बात रिपीट कर दूं अगेन, या विच पैराग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन, अगर आपको एक पैसेज में नजर आ रहा है कि मेरे पास ये 5 या 6 पैसेजेस हैं तो अभी द बिगेस्ट शॉर्टकट इज कि हर पैसेज की ट्राई टू मेक हेडिंग योरसेल्फ बिफोर सीइंग द क्वेश्चन। आपने पैसेज पढ़ा आप उसकी हेडिंग बना लें हर पैसेज की। अगर क्वेश्चन आ जाता है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स तो आप बड़ी आसानी से मैच कर लेंगे। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि विच पैराग्राफ कंटेन्स पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, अगर आपको पता होगा यार इस पैराग्राफ का ना अगर 5 लाइनों का या 6 लाइनों का मेरा पैराग्राफ है या 7 लाइनों का, तो अगर मैंने उसका 1 लाइन का वो हिंट बनाया तो पता अच्छा यार ये बात ना इस पैराग्राफ में, स्ट्रेट अवे आपको उसमें भी बड़ी आसानी हो जाएगी। एंड सेम गोज फॉर द मैचिंग। तो ये आपने देखना है कि अगर यार आप हर का उसका शॉर्टकट रख के रख लेते हैं तो ये तीनों लिस्ट ऑफ हेडिंग विच पैराग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन मैचिंग आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक हो गया मतलब साहब, ये एक क्वेश्चन आया ये भी टैकल कर दें, ये हिजाज साहब ने मुझे लगता है टेस्ट दिया है, हाउ टू मैनेज टाइम आई मिस्ड इनिशियल। अच्छा अभी साहब इसके अंदर एक बड़ी ट्रिक ये है, मैं जरूर ऐड करूंगा इनके क्वेश्चन से, कि योर टाइम इज 60 मिनट्स एंड यू हैव टू टैकल 3 पैराग्राफ्स। आपके हमेशा ये 3 पैराग्राफ्स होंगे और आपके पास टाइम है 60 मिनट्स एंड यू हैव टू मेक श्योर कि हमें लिसनिंग के अंदर तो एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलते थे, वो टेप चलती थी आप सुनते थे, आप रफ भी नोट कर लेते थे, फिर आपको 10 मिनट्स मिलते थे कि आपने आंसर शीट पे अपने आंसर उतारने होते थे वो 1 to 3। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है रीडिंग के अंदर कि उसी तरह ये 1 to 40 लिखा होगा आंसर शीट पे और आपने आंसर उतारने होंगे, यू विल नॉट गेट एन एक्स्ट्रा टाइम। अभी शायद ये बात ना काफी लोगों को बड़ी सिंपल सी लग रही हो, लेकिन शुरू में सबका 70% लोगों का मसला ये आता है रीडिंग में कि वो कर तो लेते हैं, वो थर्ड पैराग्राफ में बिजी हैं कर रहे हैं, पता लगा टाइम उतर गया, भी उन्होंने आंसर ही नहीं उतारे। जो आंसर शीट बबल शीट है जहां पे अपने 1 का आंसर क्या है, 2 का आंसर क्या है, 3 का आंसर क्या है, क्योंकि असल में तो क्वेश्चन पेपर में तो चेक होना नहीं, चेक तो होना है आंसर शीट ने।
तो ये एक बहुत बड़ा है क्वेश्चन, और खासतौर पर ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि हाउ टू मैनेज टाइम। तो अभी साहब मेरी उसमें हमेशा ये पैराग्राफ में याद रखिएगा कि पहला पैराग्राफ की लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंपैरेटिवली तीनों पैराग्राफ से इसकी थोड़ी सी लेवल डिफिकल्टी कम होती है, पर्टिकुलरली थोड़ा सा इजी होता है। सेकंड इज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड थर्ड इज द मोस्ट डिफिकल्ट आउट ऑफ ऑल दीज थ्री। सो और अब जो नए लोग टेस्ट में देते हैं वो हमेशा गलती ये करते हैं, पहला पैराग्राफ इजी पे 20-25 मिनट्स दे दिए, या कोई कह दे जी 20-20 मिनट्स आप तीनों को दे दें, अगेन दैट इज समथिंग रॉन्ग। तो आई बिलीव कि आपको पहले वाला जो पैराग्राफ है ट्राई टू कवर इट इनटू 13 to 15 मिनट्स में। सेकंड वाला जो है ट्राई टू कवर इन अराउंड 18 मिनट्स में, और थर्ड वाला जो है डू ट्राई टू कवर दैट द मोस्ट डिफिकल्ट, उसको फिर आप 20 मिनट्स दे सकते हैं। फिर इन बिटवीन आपके पास 4 to 5 मिनट्स जो आखिर में बचेंगे दैट यू मस्ट स्पेयर फॉर दैट इज गोइंग टू, मैंने जो आंसर कॉपी करने हैं उसमें मैं सजेस्ट करूंगा ट्राई अगर 5 to 7 मिनट्स, क्योंकि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में 15 मिनट्स दिए थे, सेकंड को नॉर्मली हम 18 कहते हैं, थर्ड में हम 20 कहते हैं। तो जो 7 मिनट्स आपके पास हैं ट्राई टू उसमें आपने आंसर कॉपी करने आंसर शीट के ऊपर। तो अगर उसमें मिक्सअप हो गया, एक का आंसर 2 और 2 का आंसर 3 में चला गया, तो फिर तो पूरा गलत हो जाएगा। तो अगर इवन इफ यू कैन स्पेयर सम मोर टाइम 7 or 8 मिनट्स कि आप तसल्ली से उनके आंसर्स बबल शीट पे उतारें, तो क्योंकि अल्टीमेटली तो वहीं से आपका पेपर मार्क होना है। तो दैट इज द वे। अगर ये कोई कहेगा जी मैं लोग नए हैं, टाइम का नहीं पता चलता, पहले पैराग्राफ ही 25 मिनट लग गए हैं, तो थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी टफ। थर्ड पैराग्राफ में यू विल स्ट्रगल देन, क्योंकि वो मुश्किल पैराग्राफ भी होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड वन। तो द बेस्ट टेक्निक इज ट्राई टू डू द फर्स्ट पैराग्राफ एज क्विकली एज पॉसिबल, फिर देन मूव ऑन टू सेकंड, उसमें थोड़ा ज्यादा, थर्ड में भी आपके पास एटलीस्ट 20 मिनट्स होने चाहिए, एंड आफ्टर स्पेंडिंग दिस टाइम एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स 8 मिनट्स आपके पास हो कि आप तसल्ली से आंसर अपनी आंसर शीट पर उतार दें, बिकॉज दे विल नॉट गिव यू एनी एक्स्ट्रा टाइम। और ये भी ज़हन में रहे कि जी मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन पेपर पे तो आंसर लिख दिया था, तो दैट विल अगेन नॉट काउंट, क्योंकि चेक तो आपकी आंसर शीट होनी है। तो दैट विल समथिंग दैट विल मैटर अ लॉट। तो अगेन ये जो प्रैक्टिस टाइम प्रैक्टिस है, टाइम मैनेजमेंट है, कितना टाइम उसको देना है, कितना करना है, यू मस्ट हैव अ वॉच अपने साथ लेके जाएं, पता होना चाहिए इतने बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है, इतने बजे पेपर ने एंड होना है। ये सारी चीजें आएंगी। अगेन देयर इज नो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिस, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक हो गया मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर sharing the insights. I think so you have covered everything, and really thankful. If anyone want to contact you, I already shared the numbers, and thank you. ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी।